My dear readers, yesterday you were writers and today you are readers. In this special seminar, we will be discussing our reading strategies so that you become great readers and reading will make you great writers as well. So we are going to connect reading and writing. Reading and writing. If I am audible and visible, so please like this video broadcast, share the link in 3 WhatsApp groups and save 2, and then write a comment. Comment is that extensive reading is required for writing and analytical study is required for academic writing. Extensive reading is required for writing and analytical study is required for academic writing. If I am audible and visible, so please like this video broadcast, share it in 3 WhatsApp groups and save 2. And confirm that to me that you have shared it. Write a comment. Extensive reading is required for writing, full stop. Analytical study is required for academic writing. So we are making a difference between reading, writing, study and academic writing. Analytical study is required for academic writing. Abdul Wadud Abbasi, please listen to me properly. So I am making a point. Is Amjad Sahil Khan has written, extensive reading is required for writing and analytical study is required for academic writing. So here we are making difference between reading, writing, study and academic writing. Thank you Maha Arai for sharing the links in 3 WhatsApp groups and save 2. Our starter comment is that extensive reading is required for writing, full stop. Analytical study is required for academic writing. Everybody should write it. This is our starter sentence. This is the theme of our today's seminar. The theme, the crux, the gist, CRUX, crux, gist, 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 epitome, 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 crux, gist, central idea, epitome. These are synonyms. अगर आज के सेमिनार में आपको कुछ याद न रहे, सिर्फ ये बात याद रहे, extensive reading is required for writing and analytical study is required for academic writing. This is the gist, G-I-S-T, not J, G, G-I-S-T. Epitome, gist, central idea,
मेन पॉइंट, मतलब इस सेमिनार के बाद आपको क्या पले पड़ा, थीम क्या है। थीम, सिर्फ ये थीम आपको समझ आ गया तो आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मारिका आपने सर अंजाम किया। तो मारिका क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग, एनालिटिकल स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक राइटिंग। अब हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग मीन्स टू रिकॉग्नाइज द सिंबल्स specifically of alphabet. This is the technical definition of reading. To recognize the symbols of alphabet, we can also recognize signs like traffic signs, but technically reading is to recognize and more technically decode, to decode the symbols of alphabet. रीडिंग क्या है? मतलब ये जो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ABC अल्फ़ाबेट, तो ये जो अल्फ़ाबेट आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आगे जाते हैं। अल्फ़ाबेट, महा आराई, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स फॉर मोर देन वन लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड जर्मन फॉर एग्जाम्पल। एक लैंग्वेज के लिए अल्फ़ाबेट, 2, 3, 4 लैंग्वेजेस के लिए अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, लेटर्स ऑफ इंग्लिश, लेटर्स ऑफ इंग्लिश, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। I am reading your comments analytically. Analytically. Analysis means focus on the parts. It is a big problem in Pakistani society. Lack of analytical skills. तबाही है। लोग बड़ा पहाड़ देखते हैं, हाथी देखते हैं, लेकिन हाथी के अंदर नहीं जाते कि यार ये हाथी का जो स्टोमक है ये कैसा है, उसके लेग्स कैसे है, इसकी उसका सूंड है ये क्या है। साइंस इज एनालिटिकल, फिलॉसफी इज एनालिटिकल। पाकिस्तानी कौम क्या है? मोटी मोटी चीज़ें, जल्दी जल्दी, शॉर्टकट्स, क्विक फिक्सेस, और यही प्रॉब्लम फिर एग्जाम में हो जाता है। मतलब हम डिटेल्स में नहीं जाते। तो स्टडी जो है वो उसमें डिटेल्स में जाना पड़ता है। रीडिंग जो है वो तो आप लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, अल्फ़ाबेट को डी कोड करते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मीनिंग है, ये प्रोनाउंसिएशन है, ये स्पेलिंग है। स्टडी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। स्टडी जो है ये बड़े दिल गुर्दे वाला काम है, क्योंकि स्टडी में एनालिसिस ज़रूरी है। एनालिसिस। अब मुझे कुछ लोग सुन रहे हैं, बस ठीक है, कुछ आवाज़ आपके कानों में आ रही है, सुन रहे, कुछ हो रहा है जी। कुछ लोगों ने ऐसी आंखें निकाली है जी, कान भी खोले रखे। हाँ जी, नईम खान क्या कह रहा है, हाँ, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस। So that is analysis. Analysis means to focus on the parts, not the whole. Whole is a big problem. WHOLE, whole is a big problem. ये जो होल है ना, होल, ये बहुत बड़ा मसला है। बस जी जल्दी जल्दी दे दो, बड़ा कोई पैकेट दे दो, छोड़ो जी डिटेल में। पिज़्ज़ा दे दो जी, मैं खाता हूँ,
पिज़्ज़े में क्या डालना है, छोड़ो बस जो भी डालो ठीक है, चलता है। कुछ लोग जो है वो एनालिटिकल होते हैं जी, ऑलिव, चीज़, साइज, डिफरेंट थिंग्स, वेजिटेबल्स। कुछ लोग आपने देखे होंगे जब खाना खाते थे एक एक चीज़ को दे, अच्छा जी ये कौन से ऑयल में बनाया है, ऑलिव ऑयल, ओह गॉड ग्रेट यार, अच्छा बड़ा ये कहाँ से लिया है अपने टमाटर, बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट है। तो डिवल लाइज इन डिटेल्स, डिवल लाइज इन डिटेल्स। तो रीडिंग और स्टडी का मेन फ़र्क ये है कि स्टडी जो है वो एनालिटिकल, डिवल लाइज इन डिटेल्स। फोकस ऑन द पार्ट्स। ईजा खान, पार्ट्स। अब मेरा एक लफ्ज़ आपका मुझे इधर उधर से नहीं जाता मुझसे, क्योंकि मैं एनालिसिस करता हूँ। मैं वैसे नहीं देखती जी एक कमेंट आ रहा है जी बस ठीक है, वो कमेंट का एक एक लफ्ज़ मैं पढ़ता हूँ। कुछ लोगों के पास सरी ऊपर ऊपर से गुजर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना फोकस ऑन द, ईजा खान ने क्या लिखा, फोकस ऑन द पार्ट। गौसिया नदीम ने क्या लिखा, फोकस ऑन द पार्ट्स। तो ये दोनों मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी को पता ही नहीं क्या हो गया, ईजा खान ने कौन सा ब्लंडर किया। ईजा खान ने ग्रामर का एटम बम चलाया, क्योंकि मैंने पार्ट्स कहा, मैंने पार्ट नहीं कहा। अब पार्ट और पार्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। सो सिंगुलैरिटी एंड प्लुरैलिटी, दैट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कुछ ज़माने में जमा वाहिद का इतना नहीं होता, इंग्लिश में बहुत है। एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है, सिंगुलर एग्रीज विद सिंगुलर, प्लूरल एग्रीज विद प्लूरल। अब मेरे लिए बहुत बड़ा एटम बम है कि जी ईजा खान ने क्यों इतनी बड़ी गलती की। किसी और के लिए बस छोड़ो जी यार, जाओ आगे जाओ, और क्या है, छोड़ो। तो स्टडी में अब आगे नहीं जा सकते। स्टडी में यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स, पार्ट्स। अपने पार्ट्स पे नजर रखना है, होल पे नहीं। ओ जी मैंने किताब ले ली, बड़ा खुश मुश आगे पीछे फेसबुक पे अपना स्टेटस लगा कि जी ये किताब मैं पढ़ रहा हूं। अब किताब का एक एक चैप्टर, एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ, आइडिया, वन ईच एंड एवरी आइडिया, कॉन्सेप्ट। कुछ लोग जो लिंग्विस्ट होते हैं मेरे जैसे पागल, वो तो फिर फोनीम मॉर्फीम पे जाते हैं, मतलब बिल्कुल आखिरी एटम तक, एटम के भी नीचे जाते हैं। क्वार्क्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ग्लूऑन्स। वो सिर्फ एटम पे मुतमईन नहीं होते, बात जी एटम है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बात जी बहुत हो गया। नहीं जी, अंदर भी, एटम के अंदर भी चीजें हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चार्जेस है वहां, क्वार्क्स है, फिर क्वार्क्स के अंदर पूरी दुनिया है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, फिर बंदा जो है ना बहुत डिटेल में जाता है, वेव्स, पार्टिकल्स। तो आज मेरा आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जी डिटेल्स में जाया करो। बेशक आपका ज़्यादा टाइम लगे, कोई बात नहीं है। आपका अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लगने दो टाइम को, क्वालिटी टाइम, ठीक है। अब अब्दुल मलिक मोमन साहब ने क्या लिखा, कीन ऑब्जर्वर और धमाका, तबाही। अब मेरे लिए बहुत बड़ी तबाही है। मैं तो गर्म चाय जो है ना उधर डालना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो इधर ही पी लेता हूँ। तबाही है, हद है, हद। कहता भी है कि कीन ऑब्जर्वर, लेकिन लगा दे आर, ऑलवेज एनालिटिकल। क्या करे, ऊपर से कोई हार्ट भी देता है, कोई लाइक भी करता है। कौन है ये लाइक वाले? जरा ये देखिए कितने, ये अब्दुल मलिक मोमन ने खुद हार्ट भी दे दिया अपने आप को, हुमा खान ने उधर से लाइक भी दी है, शाबाश है। हुमा खान और अब्दुल मलिक मोमन जो है कमाल है।
अब्दुल मलिक गलती भी करता है, उधर से हार्ट भी देता है, हुमा खान भी जज्बात में आ जाती है। तो ये एनालिसिस बड़ी खतरनाक चीज है। मतलब या तो कहो कीन ऑब्जर्वर्स आर, या कहो कीन ऑब्जर्वर इज। अब आपका ये जब एनालिसिस नहीं है, आप ऐसे लिखते रहते हैं, हवा में जाते हैं, तीर चलाते हैं, तो फिर तो एनालिसिस तो नहीं आ सकता। पाकिस्तान में एनालिटिकल स्किल्स नहीं है। सारे जो ना उसको पुद्दू क्या कहते हैं, उसको घाता लगाते हैं। दुकानदार भी जी कपड़ा शपड़ा, हाँ जी ज़बरदस्त किस्म का कपड़ा है जी, ले लो यहाँ, तो जेमिक्स करके, जेमिक्स उसको जेमिक्स कहते हैं, मदारीपन करके घर आते देखते जब कपड़े को, यार ये मैं क्या लाया हूं, ये क्या चीज़ है। उधर फिर आपको होश आ जाते हैं, ओ जी मैं तो CSS को बड़ा आसान समझ रहा था, ये क्या है, जब एग्जामिनेशन हाल से बाहर निकलता है। तो लोग जो है एनालिटिकल बंदे को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि एनालिटिकल बंदा जो है बकरी भी ख़रीदता है तो उसके दाम देखता है, सारी चीज़ें देखता है। कोई लड़का पसंद करता है या लड़की पसंद करती है तो वो भी सारा पूरा एनालिसिस करके, ये वेस्ट में मैंने देखा लोगों को, वेस्ट में वो सेक्स करके बाद में शादी करते हैं, क्योंकि सेक्स में आपको पता चलता है कि बॉडी क्या है, किस तरह है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, सारा आपको नज़र आ जाता है। तो बड़े एनालिटिकल होते हैं। हमारे हाथ जो है चेहरा दिखा के प्यारा प्यारा सा जी सुर्ख पाउडर लगा के मार्केट में पेश करके और बंदे को मदारी बना के, बड़े जी बड़ा ज़बरदस्त लड़का है जी, क्या करते हैं, CSS एस्पिरेंट है, अच्छा ये तो कोई बहुत बड़ा ओहदा है, हाँ जी आजकल मेरा बेटा CSS एस्पिरेंट है, अच्छा जी क्या बात है जी, ये तो कोई बड़ी चीज़ है जी, रिश्ता पक्का करो। तो वेस्ट में इस तरह नहीं होता। वेस्ट में जो डेवलप वर्ल्ड है उसमें बाकायदा तोल जोल करके, आगे पीछे देख के सारा ये वो, हाँ चलता है नहीं चलता, डिनर शिनर करके, डांस मांस करके, गपशप लगा के 4-5 महीने के बाद फिर वो सीरियस हो जाते हैं एनालिसिस के बाद, आफ्टर एनालिसिस। तो एनालिसिस एक बड़ी मुफीद चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है, क्योंकि ये आप डिटेल में जाते हैं, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। नोबडी कैन चीट ऑन यू, कोई बंदा आपको धोखा नहीं दे सकता, एग्जामिनर आपको धोखा नहीं दे सकता, ठीक है, एग्जाम आपको धोखा नहीं दे सकता, आपका सिलेबस, आपके पेपर्स, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो आपको धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि आप एनालिटिकल है, आप डिटेल में जाते हैं। तो नंबर 1 जो आई विल रिपीट अगेन, रीडिंग फॉर extensive reading, a lot of reading, extensive reading for writing, because reading gives you ideas, data, information, knowledge, and analytical study is required for academic writing. आप जो है आप एकेडमिक राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनालिटिकल स्टडी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस डू अ लिटिल रीडिंग प्रैक्टिस एंड देन वी गो फॉर द एनालिटिकल स्टडी। Anybody can help me copy paste the 15 topics that I have given for SAFE, latest SAFE magazine in SAFE 1, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करिए, वो लिंक्स के बगैर। टॉपिक्स जो है वो इधर ले आए। अभी हम सिर्फ इन टॉपिक्स को देखते हैं, इनको रीड करते हैं इकट्ठे, और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक एक टॉपिक पे आपकी क्या एनालिसिस है, इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि जब मैं ये आर्टिकल पढ़ूंगा तो आर्टिकल में क्या होगा। सो लेट अस लर्न बाय डूइंग, experiential learning. Copy paste the latest SAFE 1 magazine
which Zara Durkhani has shared, because Facebook has prohibited me to share links for a few days. So I asked her to post it. So let us learn by doing. एक तो मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ और वो भी मिर्च मसाला लगा के, आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन let us do it. इसको खुद करें. रीडिंग और एनालिसिस में क्या फ़र्क है? Extensive reading for writing and analytical study for academic writing. Exactly, ईज़ा खान. आप वैसी रीडिंग करते जाए मज़े के लिए, प्लेजर के लिए, रीडिंग फॉर प्लेजर, इंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ चपक जाएगा, लेकिन उसके बेस पे आप एकेडमिक राइटिंग नहीं कर सकते. एकेडमिक राइटिंग के लिए स्टडी ज़रूरी है, रीडिंग नहीं. बिकॉज रीडिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्टडी. जो आपका डी कोडिंग है, जब आप सिंबल्स को देखते हैं, ABC को देखते हैं, इसको आप डी कोड कर सकते हैं. मसलन चाइनीज़ है तो चाइनीज़, जापानीज़, अब जापानीज़ में कोई चीज़ लिखी जाए तो आपको पता नहीं चलता क्या है. आप डी कोड नहीं कर सकते. डी कोड का मतलब है उसका कोड तोड़ना. एन कोड, डी कोड, ENCODE, ये हम यूज़ करते हैं. एन कोड, डी कोड. साइफर, डी साइफर, CYPHER. थैंक यू महा अराय एंड रेहान अली फॉर सेफ 24 में मैगजीन. और लिंक्स की ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल मैं उसका देखता हूँ महा अराय वाले में लिंक्स है कि नहीं है. तो डी कोड, एन कोड. हाँ, अब देखो महा अराय ने मेरी बात पूरी सुन ली. एनालिटिकल, गुड. क्योंकि मैंने एक छोटी सी बात की, विदाउट लिंक्स. विदाउट लिंक्स. रेहान अली ने भी वही बात सुनी, लेकिन वो डिटेल में नहीं गया. बात ठीक है जी, कॉपी पेस्ट करो, जान छुड़ाओ. महा अराय ने कहा, सर ने कहा है कि लिंक्स मत रखो, सिर्फ टाइटल्स भेजो. ये फ़र्क है, डिफरेंस इंसान में. एक बंदा बोल रहा है, 20-25 लोग सुन रहे हैं, कोई एक तरह का सुनता है, कोई दूसरी तरह का सुनता है. जितना ज़्यादा आप एनालिटिकल होंगे उतना ज़्यादा आप उसकी डिटेल में जाओगे. अच्छा, रीडिंग जो है हर बंदे का अपना स्टाइल होता है. रिमेंबर, ऑटोनोमस रीडिंग, ऑटोनोमस स्टडी, फ्रीडम इन स्टडी, आपका अपना स्टाइल है. मेरा एक स्टूडेंट है, वो जी मैं पिछले 2 हफ्तों से कोशिश करता हूँ कि मैं 10, 11, 12 बजे सो जाऊँ और सुबह 7, 8 बजे. नहीं हो सका मुझसे. मेरा पूरा हफ्ता, पूरी 3-4 हफ्ते मेरे ज़ाया हो गए. मैंने कहा छोड़ो यार, 5-6 बजे तक स्टडी करो, फिर सो उठो. आपका बॉडी क्लॉक है, आपका अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल पे चलो. मत सुनो ये फजूल किस्म के मेंटोर्स और मोटिवेशन स्पीकर्स और ये वो, क्योंकि हर बंदे का अपना स्टाइल है. ऑटोनोमस रीडिंग है, आपको फ्रीडम हासिल है. जिस तरह आप इजी है उसी तरह अपना रीडिंग करें. जब आप कंफर्ट में नहीं है, आप इजी नहीं है, तो क्या खाक आपके दिमाग में कुछ बैठेगा. पहले अपने आप को इजी तो करो. अब मैं पत्थर पे बैठ के, मुझे ज़्यादा मेमोराइज होती थी चीज़ें. मैंने पूरा PMS और CSS जो है पत्थर पे बैठ के किया है. पत्थर, कौन सा पत्थर? गांव में जो वो नहर बहता है, वहाँ खूबसूरत किस्म का बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मैं उस पे बैठता था. मेरा ये स्टाइल है. कोई कुर्सी पे बैठ के उसको मज़ा आता है, किसी सोफे में बैठता है, जो भी है. अनहेल्दी बेशक ना करें, मतलब जो लोग लेट के करते हैं वो अनहेल्दी है, वो साइंटिफिक नहीं है. बाकी तो जो भी आपका तरीका है उसी तरह स्टडी किया करें. सो माहा अराय, प्लीज कॉपी पेस्ट इट 3-4 टाइम्स सो एवरीबॉडी कैन सी इट. अब ये जो है आपका लेटेस्ट मैगजीन है और इसको हम करते हैं. ऊपर मैंने क्या लिखा है, हुक डाला है, हुक, कुंडा डाला है ताकि आप लोग उसको देख लें. These topics are unavoidable for assured success in competitive exams.
कोई इसको करेगा जी अनएवॉइडेबल, ए श्योर सक्सेस, कंपेटिटिव एग्जाम्स। कहते यार ये तो कोई काम की चीज़ है, पढ़ो इसको। उसके बाद मैंने दूसरा हुक डाला है, सेफ मैगजीन covers the entire spectrum of national and international developments. Entire spectrum, entire gamut, G-A-M-U-T, entire gamut. तो spectrum, gamut, prism, P-R-I-S-M, latest edition, डील विद दीज टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? अब टॉपिक्स को हम रीड करते हैं। अब आपका टास्क क्या है? प्लीज़ यू हैव टू सी द एक्सपेक्टेशंस। अब आप एक बुक है या लेक्चर का टाइटल है या प्रेसी राइटिंग है, तो जब आप उसको देखते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? अ रीसेंट सर्ज इन फिशन रिएक्शन in an inaccessible chamber within the complex is alarming. Scientists that monitor the ruins of the Chernobyl nuclear power plant in Ukraine. अब मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं एकदम से गूगल में जाता या मैप में जाता कि यार ये चेरनोबिल क्या है, यूक्रेन किधर है, यूक्रेन का कैपिटल क्या है, यूक्रेन की करेंसी क्या है, यूक्रेन और रशिया के दरमियान क्या प्रॉब्लम है। यूक्रेन जो है वो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, फॉर्मर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। अब यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक में जाना चाहता है, वो रूस से अपने आप को फ्री होना चाहता है। तो जो यूएसएसआर था उसने वहां चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था, फिर वो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन अभी भी उससे लीकिंग हो रही है। ये अलार्मिंग है। और फिर अगर जीएसए है मेरा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो फिशन और फ्यूजन को मैं कनेक्ट करता हूं, फिशन एंड फ्यूजन। अब एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बनता है फिशन से, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो बनता है फ्यूजन से। तो मैंने पूरा जो है ये डिटेल में गया कि यार ये कोई खतरनाक चीज है, इस आर्टिकल को मैंने पढ़ना है। एक फिशन है, एक फ्यूजन है, तो ये कनेक्टिंग डॉट्स है। ठीक है, आपको न्यूक्लियर पावर जो है दो तरीकों से मिलता है, या आप उसको स्प्लिट करते हैं, फिशन करते हैं, या आप दो न्यूक्लियाई जो है उसको फ्यूज करते हैं, फ्यूजन। जो फ्यूजन है दैट इज मोर पावरफुल। हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल देन यूजुअल एटॉमिक बॉम्ब। अब न्यूक्लियर डेटरेंस, कोल्ड वॉर, यूएसए, सुपर पावर, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें इधर मुझे नज़र आ रही है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? स्टडी कर रहा हूँ। अब वैसे मैं पढ़ता हूँ जी, अ रीसेंट सर्ज इन फिशन रिएक्शंस इन एन इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबल जो है मेरे पैसिव वोकैबुलरी है। यार ये इनएक्सेसिबल का मीनिंग तो मुझे आता है, लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं करता। आज के बाद मैं इनएक्सेसिबल को यूज़ करता हूँ। Nothing will be inaccessible to me in safe online digital books. मैं हर चीज की तरफ एक्सेस करूंगा, पहुंचूंगा। इनएक्सेसिबल प्यारा सा लफ्ज है, इनएक्सेसिबल। रीडिंग में हमें आता है, लेकिन इसको हम राइटिंग में नहीं लाते या स्पीकिंग में नहीं लाते। अगर आप लाते हैं, पूछो अपने आप से, आपका जो भी नाम है, अपने नाम अपने आप के साथ बात, मैं अपने आप के साथ बात करता हूँ। ओ नईम खान, ग्रेट, नईम खान, लव यू, ओ वेरी गुड, वाह वाह। अपने आप के साथ बात किया करें, अपना नाम लिया करें। तो अपने नाम, जो भी आपका नाम है, कहो, हाँ जी, इनएक्सेसिबल, व्हाट अ लवली वर्ड, बट आई डोंट यूज इट। डिड यू यूज इट एवर
कभी आपने इसको यूज़ किया है? नो, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या यूज़ करता। तो ये स्टडी है। अब हम नंबर 2 पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, अब क्या समझते हैं कि अगर आपने ये 2 आर्टिकल पढ़ लिए और आपने इसको एग्जाम में लिख लिए एजुकेशन पे, तो आप टॉप मार्क्स नहीं लेंगे। आपने रीडिंग की है या स्टडी की है? कौन आपको रोक सकता है कि आप सीएसएस को टॉप ना करें? अगर आप ये आर्टिकल पढ़े और इसे डेटा ले लें। According to an estimate, children waste half of their time while at school every day in more than 60,000 out of about 130,000 public sector primary schools in Pakistan. अब वाहिद बंदे होंगे कि आपके इससे में ये डेटा होगा। This happens due to the fact that children are taught in a multi-grade teaching environment. MTE या MTG, यार ये क्या चीज़ है? मल्टी टीचिंग एनवायरनमेंट, मल्टी ग्रेड MGT, मल्टी ग्रेड टीचिंग। अब मल्टी ग्रेड टीचिंग जो है, मुझे मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो है ना, बहुत कम लोग होंगे एनालिटिकल जिसने ये आर्टिकल पढ़ा है कहीं और से। तो अगर आप पेपर में लिखोगे मल्टी ग्रेड टीचिंग should be stopped. Necessary measures must be taken for alternative of multi-grade teaching. अब ये 2 आर्टिकल्स है, एक नंबर 2 पे मैंने दिया है, एक नंबर 3 पे। It is critical to look at how the MGT challenge should be holistically responded to on several fronts. While evaluating possible ways to deal with this issue, there seem to be 2 plausible prongs of the broader strategy to address this challenge. अब एक बंदा है जो मुझे सही सही फॉलो कर रहा है, जो वो प्लॉजिबल प्रोंग पे आ जाएगा। प्रोंग, यार वो नईम खान उस दिन कह रहा था मल्टी प्रोंग्ड पॉलिसी, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। तो हो सकता है मुझे किस भी भेजे, नईम खान थैंक यू, प्रोंग उस दिन मैंने सुना, आज इधर आ गया। कनेक्टिंग डॉट्स, डॉट्स को मैंने कनेक्ट किया। प्रोंग का मतलब है ब्रांच, डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी फेसेटेड। तो ये आपका ज़हन, आपका दिमाग जो है ना ऐसे घूमता फिरता है, यार क्या बात है। तो ये जो 2 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, MGT जो है आप पेपर में लिखोगे, आपको याद होगा MGT। आपका जो एजुकेशन का एसे है या एजुकेशन पे आपका क्वेश्चन है, उधर आपने नोट्स में MGT लिखा, पूरा नहीं लिखा, याद रखे। ठीक है, ये याद रखे कि एब्रिविएशन लिखा करें नोट्स में, पेपर में नहीं, ताकि फिर आपको याद रहे कि यार ये MGT क्या है। अब भूल गए आप 1 महीना बाद, फिर आप जाते हैं यार MGT, तो फिर अब आपका एक कनेक्शन बन जाता है। मल्टी ग्रेड टीचिंग ये है कि भाई एक टीचर है, वो 2-3 ग्रेड्स को, 2-3 क्लासेस को पढ़ाता है। इधर मास्टर पढ़ाता है, उधर जो है ज्योग्राफिया पढ़ाता है, उधर कहीं और जो है वो साइंस पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है, उर्दू पढ़ाता है। तो इसको कहते हैं मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो ये गलत बात है। कम से कम प्राइमरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में हर सब्जेक्ट के लिए अपना स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो फिर जो है MGT नहीं होगा। और सिर्फ ये नहीं कि हो सकता है वो बंदा पढ़ा भी सकता हो 3-4 सब्जेक्ट्स, ये इशू नहीं है कि वो पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। इशू ये है कि बाकी लोग एम बैठे रहते हैं, उस्ताद साहब आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं MGT। अब ये 2 बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल्स हैं, ये पढ़ के आपके एजुकेशन के एसे पे 2-3 पैराग्राफ्स आपको मिल गए। अब नंबर 4 को हम स्टडी करते हैं कि क्या है जी। एवरी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द करंट वन
has gone around the world with a begging bowl. We are now drowning in debt and stuck in an anemic growth orbit, and will continue to be this way since no government has pursued the deep reforms necessary to establish an economically strong Pakistan. Of economic problems, economically strong Pakistan, reforms, begging, debt. How relevant it is, कितना ये relevant है. You must connect yourself to it. यार ये तो यही तो चीज़ है जो मैंने कल एग्जाम में लिखना है. इसको मैं क्यों स्टडी ना करूं? इससे बेहतर क्या होगा? कि पाकिस्तान ने बॉल उठाया है, हर बंदे से जो है ना भीख मांग रहा है. ठीक है, और इसकी लैंग्वेज देखो, इसकी जो है ना टर्मिनोलॉजी पे नजर रखो कि we are now drowning in debt and stuck in an anemic growth orbit. Anemic growth orbit. Anemic, blood, जिसमें ब्लड नहीं है, पावर नहीं है, पावरलेस. हमारा ग्रोथ क्या है? एनेमिक प्लांट की तरह, या एनेमिक जो बंदा होता है जिसको एनीमिया होता है, जिसमें होमोग्लोबिन, विटामिन डी वगैरह नहीं होता, विटामिन बी, तो वो फिर एमी पीला पीला सा, हर वक्त उसके सर में दर्द होता है, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, ओ जी हर वक्त फरियाद फरियाद. तो वो एनेमिक. तो हमारा ग्रोथ ऑर्बिट जो है वो भी एनेमिक है. जैसे कि पौधा है मुरझाया सा, और करीब कभी थोड़ा सा बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है. तो what a beautiful language. So this way we have to study. Number 5, the emerging situation in Afghanistan is indicative. अभी देखो, indicate हो सकता है ये आपकी एक्टिव वोकैबुलरी हो, इंडिकेशन भी एक्टिव वोकैबुलरी हो सकता है, लेकिन इंडिकेटिव is indicative of. What a beautiful phrase. A political and military meltdown with serious multi-pronged security. अब उधर आपने prong देखा, prong, इधर multi-pronged हो गया, multi-dimensional, multi-faceted. तो ये लर्निंग जो है ये बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन जब आपको कनेक्टिंग डॉट्स आ जाए, उधर prong आपको याद रहेगी, जी मैंने prong पढ़ा था, मैंने prong सुना था, अब दोबारा multi-pronged आ गया. Israel launched its campaign of destruction in the area of Sheikh Jarrah by eviction, ये देखो, expel, evict, निकालना Palestinian families from their homes. अब देखो शेख जारा हम सुनते हैं कि भाई शेख जारा. एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि यार ये शेख जारा है क्या चीज़, क्यों यहाँ से ये इतना बड़ा इशू शुरू हो गया. तो शेख जारा जो है, अभी देखो, आफ्टर हिसामुद्दीन जारा who lived in the 12th century AD and was a personal physician of Sultan Salahuddin Ayyubi, who liberated Jerusalem from Christian control in 1187. बड़े लोग जी सुल्तान अयूबी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. उसे पूछिए सुल्तान अयूबी कब आया था पैलेस्टाइन? यार लगता है कोई 2000 साल पहले आया होगा, 1500 साल पहले आया होगा, कोई आइडिया नहीं है. शेख जारा कौन है? ये उसका फिजिशियन था, उसका डॉक्टर था. तो उस डॉक्टर के नाम पे जो है ये जगह बनी है. तो क्या मतलब एक खूबसूरत किस्म का डेटा हिस्टोरिक आपके पास आ जाता है. आप भी किसी महफिल में बैठ के जी बड़े फ़ख्र के साथ कहते जी शेख जारा कौन था? सलाहुद्दीन अयूबी जो है 1187 में आया था, 1187. तो ये डेटा जो होता है ये आपको एकेडमिक राइटर बनाता है. Number 7. While a ceasefire has brought Israel aggression to an end, this will only be a lull before the next storm. Lull.
साइलेंस, लल्लेबाय। लल्लेबाय जो बच्चों को लोरी सुनाती है, लोरी, तो लोरी को क्या कहते हैं? लल्लेबाय। तो ये जो है आपका, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि एक मैगजीन में आप लोगों को कितनी चीज़ें मिल जाती है। यही एग्जांपल जो है आप ले ले, अपना कोई बुक उठा ले, या जो है आप अपना नोट्स उठा ले, तो स्टडी में जो है आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा। फर्स्ट जो है ये अब्दुल वदूद साहब, अगर आपको कोई कब्ज़ है, ठीक है ना, कुछ लोग जो है हर चीज़ पे हंसते रहते हैं, तो हर चीज़ पे मत हंसो प्लीज़। आप उसने लल्लेबाय स्पेलिंग लिखा, उधर से तुमने हंसी का, इधर जो है एंटरटेनमेंट के लिए मत आओ। ये कोई एंटरटेनमेंट का क्लास नहीं है, उधर भी आपने डाल दिया, शाबाश है। क्या है इसमें हंसी की बात? अब क्या समझेंगे लोग? आपकी मस्खरी उड़ाए, आपकी आपकी हंसी उड़ाए। बी रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको देख रहा हूँ, आप जो है ना सही बंदे नहीं हो। दैट इज़ अ क्लास। हमेशा सीनियर जो होता है, टीचर, वो मजाक कर सकता है, स्टूडेंट मजाक नहीं कर सकता। आप वैसे मजाक कर सकते हैं, लेकिन किसी बंदे के ऊपर नहीं कर सकते। या कोई मजाक की बात तो हो, वो स्पेलिंग लिख रहे हैं, अपनी स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं, और तुम ऊपर से जो है ना स्माइली फेंक रहे हो। ठीक है, वो कोई एंटरटेनमेंट चाहे तो जाए, कोई वो मज़ाहिया प्रोग्राम सुनो। So coming back to the topic of study and reading. So today my main purpose is the messages that please differentiate reading and study. Now the final point before you start asking questions about your reading habits and your reading problems, the last point is that how to memorize. How to memorize. ये तो ठीक है, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, डी कोडिंग कर रहा हूँ, डी साइफर, DECYPHER। मैं ये जो आपके लेटर्स है उसको समझ रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये वर्ड है, ये लल्लेबाय है, ये लल है। ये इस हद तक तो मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल अनपढ़ नहीं हूँ, इलिटरेट नहीं हूँ। लिटरेसी मुझे है। लिटरेसी मीन्स टू नो 3 R's। टू नो 3 R's। 3 R को जानने को कहते हैं लिटरेसी। राइटिंग, रीडिंग, अरिथमेटिक। राइटिंग, रीडिंग, अरिथमेटिक। तो ये जो है 3 R's है, इस तीनों में R आता है। राइटिंग में भी R है, रीडिंग में भी R है, अरिथमेटिक में भी R है। So reading, writing, arithmetic, 3 R's. Triple R is literacy. Triple R is literacy. So you are literate. You know how to read, you know how to write, you know how to do arithmetic, calculation, basic summation, subtraction, multiplication, division. ये चीज़ें आपको आती है, जमा ज़रब तकसीम कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज जो है वो है स्टडी। स्टडी मीन्स टू रीड और टू लिसन और टू ऑब्जर्व, then to inculcate, and finally to express in writing and speaking. This is the complete definition of study. What is study? Study is to read or to listen or to observe or to experience, then to inculcate, and finally to express in the form of writing and speaking. ये कंप्लीट
ये इस सेंटेंस को आपको रट्टा लगाना चाहिए, क्योंकि लर्निंग बाय रोड जो है ROTE, रट्टा लगाना, ये जो रट्टा है ये रोड से निकला है, ROTE। कभी कभी रट्टा लगाना पड़ता है, या इस चीज़ को रिपीटिशन करके बार बार सुनो ताकि ऑटोमेटिकली रट्टा बन जाए। तो ये आपको रट्टा, कुछ चीज़ें जो है रट्टे के बगैर नहीं हो सकते। रट्टा लगाना गलत चीज़ है, लेकिन डिफिनीशन के साथ क्या करोगे? तुम कौन सा अफलातून हो या प्लेटो हो जिन्होंने दुनिया के पहले पहले डिफिनीशन बनाई है? या तो बंदा अफलातून बन जाए तो फिर अपना डिफिनीशन दिया करे। तो जब अपना डिफिनीशन आप नहीं दे सकते तो फिर किसी और के डिफिनीशन को रोट लर्निंग जो है वो ज़रूरी है। तो एक जरताशा खान ने इसको लिखा, थैंक यू, इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ रिक्वायर्ड। शुरू में मुश्किल होता है, आखिर में फिर अब इजी हो जाते हैं। तो जरताशा खान हैज़ रिटन द डेफिनेशन, स्टडी इज टू रीड और टू लिसन और टू ऑब्जर्व और टू एक्सपीरियंस, कॉमा और सेमीकोलन, then to inculcate, and finally to express in the form of writing and speaking. Please copy paste it 3-4 times. क्या बात है। ये जो है कंप्लीट पिक्चर है स्टडी का। क्या आप इसके लिए तैयार है या तैयार नहीं है? आपको तैयार होना चाहिए अगर आपको सक्सेस चाहिए। स्टडी के उसके नॉलेज के 4 सोर्सेज है। नॉलेज हमें 4 जगहों से आता है। रीडिंग से आता है, लिसनिंग से आता है, आजकल ऑडियो बुक्स का बहुत बड़ा ज़माना है। ये हमारे एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं मुझे आंखों का मसला है। आज मैंने डॉक्टर से पूछा तो कह रहे हैं लुब्रिकेंट्स लगाई, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, ताकि आंखें आपके ड्राई ना हो। अच्छा, मेरे जो ग्लासेस है इस पर मैंने एंटी रेडिएशन लगाई है, तो मुझे स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं कहता। इस वजह से मैं स्क्रीन को, आंख को इसके बगैर नहीं देखता। तो ये कुछ फिजिकल चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल आप बीमार हो गए तो बस गए। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें है। तो आप जो है, या ऑडियो बुक्स का आजकल ज़माना है, क्योंकि ये जो कान है, कान, ईयर्स, ये बड़े रफ किस्म के हैं, और आइज़ जो है ये बहुत वो है, सेंसिटिव है। तो नई लोग जो है पेडागॉजी में, साइंस ऑफ टीचिंग में, साइंस ऑफ लर्निंग जो इसको कहते हैं पेडागॉजी, पेडागॉजी जो है उसमें ऑडियो को ज़्यादा वो प्रेफर कर रहे हैं कि भाई सुना करो, मतलब हैंड्स फ्री लगा के सुना करो बजाय पढ़ा करो। तो लिसनिंग जो है वो भी एक सोर्स है नॉलेज का। तीसरा ऑब्जर्वेशन, खुद ऑब्जर्वेशन किया करें, बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्व भी किया करें चीज़ों को। मतलब आप मुझे सुन तो रहे हैं, मेरे वेव्स आ रहे हैं आपके पास, लेकिन मुझे ऑब्जर्व भी क्या करें। क्या रे नईम खान कैसे सर हिलाता है, ये कैसे ऐसे ऐसे करता है, ये कैसे, उसका स्टाइल क्या है, कैसे बैठा है, क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे एक्सप्लेन करता है। मैं भी जब सेफ टू में आऊँगा मैं भी इस तरह करूँगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो आप बॉटनी की किताब पढ़ते हैं या किसी प्लांट को आप ऑब्जर्व करते हैं, नेचर को आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस किया करें चीज़ों को, मतलब लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस किया करें। बाजार जाया करें, कभी कभी मार्केट जाया करें। अभी CSS वाले तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ओवरऑल लाइफ में जो है एक्सपीरियंसेस बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक्सपीरियंसेस। बिकॉज विजडम इज नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। विजडम का क्या डिफिनेशन है? नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। वाइज बंदा का जरूर एक्सपीरियंस होता है, फिर वो वाइज बनता है। वैसे रीडिंग से, स्टडी से आप
नॉलेजेबल तो बन जाते हैं, नॉलेजेबल, आपके पास नॉलेज आता है, लेकिन एक्सपीरियंस से आपके पास विजडम आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टडी इज़ टू रीड और टू लिसन और टू ऑब्जर्व और टू एक्सपीरियंस। इन चारों में, ये 4 सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। आपके पास नॉलेज जो है ये 4 तरीक़ों से आता है। या आप रीडिंग करते हैं, या लिसनिंग करते हैं, या ऑब्जर्व करते हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस होते रहते हैं। उसके बाद क्या है? इनकलकेट। इनकलकेट मीन्स मेमोराइज, अंडरस्टैंड, पुट इट इन योर ब्रेन सिस्टम। आपने पढ़ा, सुना, मुशाहिदा किया, तजुर्बा हो गया, अब इसको अपने दिमाग के इस सिस्टम में बिठा दो, सेटल डाउन करो, उसको प्रोसेस करो। इनकलकेट, मेमोराइज, अंडरस्टैंड। लेकिन इधर बात ख़त्म नहीं होती। फाइनली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग। हमेशा राइटिंग क्या करे, स्पीकिंग क्या करे, सेफ टू में डिस्कशन फोरम क्या करे, वैसे कोई क्वेश्चन डाला करे, प्लीज़ लगाए, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। कोई नहीं करता, फिर कमेंट नीचे लिखो, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। इंसेस्ट, इंसेस्ट। जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, आप खुद उसको भूल जाते हैं, तो दूसरे बंदे को क्या पड़ी है कि आपके कमेंट का या आपके क्वेश्चन का जवाब दे दे। इंसेस्ट, इसरार करे, लोगों के सामने रोए, मिन्नतें करे, बिसीच, इंट्रीट, इंसेस्ट। हमारे पाकिस्तानी कौम क्या है जी, एक दफ़ा बात की फिर खुद भी भूल गए और दूसरा तो भूल ही जाता है। इंसिस्ट क्या करे? डिस्कशन करे। डिस्कशन में जो चीज़ जहन में आती है, समझ में आती है, वो वैसे नहीं आती। एक्सपीरियंस में जो आती है वो वैसे नहीं आती। तो इंसिस्ट क्या करे? मुझे आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, हो सकता है मैंने नहीं देखा, मैं भूल गया हूं, लेकिन आप अपनी चीज़ को मत भूला करें। INSIST, अभी किसने लिखा? ये बड़ा ख़तरनाक दिमाग है इसका, जिसने CEST के साथ लिखा। तो ये जो आपका राइटिंग और रीडिंग का प्रैक्टिस है, अच्छा ये आज़ाद मुझे तो लगता है ये मासूम किस्म का बंदा है। इंसेस्ट और इंसेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंसेस्ट का मतलब है इसरार करना, अपने चीज़ के लिए खुद गरज बनना, मिन्नतें करना, समाजत करना। प्लीज़, आई वुड लाइक टू लिसन टू यू, आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन प्लीज़, आई एम स्टिल वेटिंग, इट इज़ स्टिल अवेटेड। तो थोड़ा बहुत पालिश किया करे, कुछ नहीं होता इससे। अपने मकसद के लिए थोड़ा सा जो है ना वो लगाया करे, बटर शटर, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि आप उसमें सिंसियर है, आपको वो चीज़ चाहिए, और वो भी नॉलेज के लिए। तो कोई आप किसी को पैसे तो नहीं मांग रहे, कोई बेगिंग नहीं कर रहे। आपने बेगर को देखा है, जो भिखारी होता है, 5 रुपए के लिए कितना इंसिस्ट करता है। आज मैंने एक को कह दिया, कहा ये होगा तो अल्लाह आपको देगा, तो ये तो होगा। मैंने कहा फिर अल्लाह आपको क्यों नहीं देता कि मुझे देता है? मतलब अजीब किस्म के इतना इंसेस्ट करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, गाड़ी की शीशे को क्योंकि उनको वैल्यू पता होता है कि यार ये जो वैल्यू है 5 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की, बहुत बड़ी वैल्यू है। आपको नॉलेज का वैल्यू नहीं पता, जिस वजह से आप इंसेस्ट नहीं करते, आप शर्माते हैं, खुद भूल जाते हैं। तो इंसेस्ट क्या करें? ये जो आज़ाद ने लिखे ना, INCEST, इंसेस्ट, इसका मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स। तो थोड़ा सा जो है अपने मकसद के लिए बंदे को तेल शेल लगाया करे, कोई जो है ना मालिश किया करे, वो बंदा वैसे खुश हो जाता है, यार देखो कितना बड़ा सिंसियर बंदा है, तो वो भी खुश हो जाता है, उसके अना को तस्कीन मिल जाती है कि मुझे भी किसी ने कोई चस्का मस्का कोई वो डाल दिया। तो कुछ नहीं होता इसमें। अपना मकसद क्या करे? बी एगोइस्ट, सेल्फिश। इफ यू हैव नाउ एनी क्वेश्चन, सो प्लीज ask, and then I will be giving you final tips for study and reading.
ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये नॉलेज के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। नॉलेज वाले बंदे को जब आप चमचे लगाते हैं तो वो उसको बुरा नहीं लगता। थोड़ा सा उस बंदे को फील कराया करो यार कि तुम बड़ा इंपॉर्टेंट बंदे हो। फ्लैटरी जो है, फ्लैटरी खुशामद होता है कि खुशामद, वो नॉलेज वाले बंदे के पास करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, किया करो। वो बंदा भी फील करता है यार मैंने भी 50 किताबें पढ़ी है, आज मेरा भी किसी ने नाम लिया है, मेरा भी पोस्ट किसी ने शेयर किया है, क्या बात है। तो नॉलेज वाले लोगों को थोड़ा सा जो है ना आपके चमचे लगाने से कुछ नहीं होता, क्या करें। लोग आप देखिए, मैंने आपको भिखारी का मिसाल दिया, 100 रुपए किलो क्या क्या नहीं बोलता। तो क्या है आपके प्रॉब्लम्स, रीडिंग स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स है? तो मेन पॉइंट मेरा आज के सेमिनार का वो ये है, एनालिसिस। एनालिसिस डिटेल्स में जाया करें, बेशक आपका टाइम लगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक क्वेश्चन पक्का तैयार करें दिन में, वो उससे बहुत बेहतर है कि आप इधर उधर जो है ना वो मुंह लगा के कभी इधर से लिया कभी उधर से लिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। एक चीज पक्का तैयार करो और बाकी चीजों को पेंडिंग में डालो, पेंडिंग में, कि मैं ये करूंगा, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फ्यूचर इज अ बिग होप, याद रखना, फ्यूचर इज अ बिग होप। आई एम अगेंस्ट द कल्ट ऑफ नाउ। जो लोग आपको कहते हैं ना कि जी नाउ, अभी, ठीक है ना, ये अभी वाला चक्कर गलत है। फ्यूचर है हमारे पास, तो फ्यूचर में हम करेंगे, कुछ नहीं होता। आज तो मेरा सही गुजर गया। रीडिंग फॉर लैंग्वेज डेटा एंड एनालिसिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाउ टू स्ट्राइक a balance between cramming tasks and conceptual study. Cramming only for definitions, data, figures, statistics, and not that kind of cramming. इस तरह भी cramming नहीं कि बस आपने जो है ना वो बच्चों की तरह किताब उठा के ये सो पाकिस्तान हैज़ फोर प्रोविंसेस, उस तरह के cramming नहीं। उस चीज़ को बार बार पढ़ो, listen to that again and again, वो ऑटोमेटिकली आपका क्रैमिंग हो जाएगा। व्हाट इज क्रैमिंग? क्रैमिंग इज बेसिकली रेपिटेशन। रेपिटेशन, चीज को रिपीट करो, बार बार पढ़ो, तो फिर इससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपका जो सॉलिड किस्म की चीजें है, एमसीक्यूज वगैरह, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। Cramming means repetition. How to memorize? हसन बिन जमील। Memorize. अभी देखो इंग्लिश बड़ी फजूल लैंग्वेज है। Memories is the plural of memory. Memories is the plural of memory. Memorize is verb. So how to memorize? The second step of memorization is expression. Expression, discussion, writing, debate, speaking. जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उस पर डिस्कशन क्या करें, लिखा करें, खुद लिखे, नोट्स बनाए, मेमोरी को अपना इस्तेमाल करें, अपनी मेमोरी से लिखे। राइटिंग प्रैक्टिस, चेकिंग, इवैल्यूएशन, सेफ टू, ये सब कुछ क्या है? ये आपके जो है वो मेमोरी के स्ट्रेंथन के लिए है कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाए। हम एक्सप्रेशन क्यों करते हैं? एक्सप्रेशन इज प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, एक्सप्रेशन नहीं करते, राइटिंग स्पीकिंग नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, तो वो चीज कैसे आपको मेमोराइज हो जाएगी? आप एग्जाम में जाके पहले दफा जब आप चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो वो मजा तो नहीं होता। अगर उसी चीज पे आपने बार बार लिखा हो, बार बार आपने बोला हो, तो फिर वो आपको इजी लगता है। सो हाउ टू मेमोराइज? एक्सप्रेस। एंड another formula that I have given you many times, the art of memory is to forget. The art of memory is to forget. ये किसी ने लिखा भी, unlearn. मेमोरी का फन क्या है? भूल जाना,
ख़ास तौर पर ट्रिवियल, छोटी छोटी चीज़ें, इररिलेवेंट चीज़ों को भूल जाना। आज मैंने आप लोगों को कहा फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम वगैरह सिर्फ CSS PMS के लिए, लैंग्वेज के लिए सिर्फ, बाकी बिल्कुल ब्लॉक करें ताकि आपको बाकी कोई चीज़ नज़र ही ना आए। क्यों? द आर्ट ऑफ मेमोरी इज टू फॉरगेट। भूल जाना जो है वो असल में याद करना है। जब आप किसी पे आशिक हो जाते हैं तो आप दुनिया जहान को भूल जाते हैं और वही बंदा आपको याद रहता है। अगर आप इधर भी टोंक लगाए, उधर भी लगाए, इधर भी लगाए, तो फिर आपको कहीं भी जो है पीस ऑफ माइंड नजर नहीं आएगा। How to be a consistent reader? I am reading a book lately, but I am not able to continue to read on daily basis. How to be a consistent reader? Consistency is logic. याद रखना, सिंपल बात। Consistency is logic. कभी आपने खाना भूल गई हो, कभी सोना भूल गई हो, कभी कपड़े पहनना भूल गई हो, क्योंकि वो लॉजिकल है। ठीक है, जो चीज़ आपको लॉजिकल लगेगी वही आप करोगे। आपके औकात ही यही है, अपने औकात को पहचाने। लोग अपग्रेड होते हैं, अपनी क्लास को चेंज करते हैं। कभी गांव में रहते हैं लकड़ी की घर में, फिर गांव छोड़ के किसी टाउन में जाते हैं, फिर किसी सिटी में जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन आप जो करते हैं दैट इज़ योर रियलिटी। अरिस्टोटल इसी वजह से कहता है कि एक्सेलेंस इज रिपीटिशन। आप जो काम डेली करते हैं यही आपका काम है, यही आपके औकात है। ठीक है, अगर आप रीडिंग नहीं करते इसका मतलब है कि आपके औकात ही नहीं है रीडिंग का। जो आप करते हैं वही आपके औकात है, वही आपकी रियलिटी है। अगर हम डेली खाना खाते हैं, इसलिए कहते हैं कि लॉजिकल है, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो रीडिंग को अगर आप इंपॉर्टेंट समझती है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी रीडिंग। इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ इसका हल जो है वो लॉजिक है। चीज़ों को लॉजिक बनाया करो, लॉजिकल। यार ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे करियर का सवाल है, ये मेरा रिस्पेक्ट है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी जो है पैसे का सवाल है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो जब आप कोई कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली वो काम जो करने का होता है फिर आप करोगे। अगर आप नहीं करते तो आपके औकात ही नहीं है, आप उस चीज़ के लिए पैदा ही नहीं हुए। प्लीज़ इंक्रीज माई नॉलेज एट स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। You speak a sentence with ending is required. Please tell me why use. Now, is required is passive voice. Is required, that is passive voice. I found many problems in reading as compared to listening. I can easily listen to lectures for 4 or 5 hours easily, but when I start reading, I hardly cover one article. This is why audio books are there nowadays. Audio books. People, they do not want to read because reading needs a lot of eye contact, eye focus, use of eyes. तो आंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है रीडिंग में। बेसिकली आपने इस चीज़ को खोपड़ी तक पहुंचाना है, खोपड़ी तक। अभी खोपड़ी तक आपने पहुंचाना है, फिर उंगली से आपने इसको लिखना है या ज़बान से आपने बोलना है। मकसद वही है, आंखों का इस्तेमाल नहीं है मकसद। तो अगर आप लिसनिंग से कर सकते लिसनिंग से करें, लेकिन गोल क्या है? गोल इज राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर लिसनिंग से आपको चीज़ आती है और आप इस पर राइट कर सकते हैं, इस वजह यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोग सुनते हैं, देखते भी है लेकिन सुनते भी है।
अब अल्फाज को पढ़ना, एक एक लफ्ज़ को, मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। कुछ लोग रीडिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं। लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। लर्निंग आसान काम नहीं है, इट टेक्स टाइम। Is taking notes on book in the form of bullets. नोट्स ऑन बुक। ऑन बुक का मतलब कि जब आप बुक पढ़ते हैं और उसी पे आप नोट्स करते हैं, हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अगर वो बुक आपने किसी और इस्तेमाल के नहीं रखना, करे उसको। मुझे तो याद है, मैं तो बुक की पेजेस भी पढ़ता था। हाँ, ये भी मेरे साथ हुआ है, जो बिल्कुल कोर्स किस्म का बुक होता है, टेक्स्ट बुक। तो मैंने पहला पेज पढ़ लिया, हाँ जी इनकलकेट हो गया, इस पे बात कर सकते हो नईम खान, हाँ जी कर सकता हूँ, पढ़ो। तो उसको मैं टीयर करके डस्टबिन में डालता था। तो पूरा किताब जो है, मैं उसको पूरी किताब को मैं पढ़ता था, ख़त्म करता था। तो जो भी तरीका है, अब लर्निंग इज योर ओन स्टाइल, ये आपका अपना स्टाइल है। मकसद क्या है? राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग एंड स्पीकिंग। मकसद रीडिंग और लिसनिंग नहीं है। रीडिंग लिसनिंग से क्या होता है? राइटिंग आपका प्रोडक्ट है, स्पीकिंग आपका प्रोडक्ट है। रीडिंग तो आप किसी और को रीड कर रहे हो, लिसनिंग किसी और को सुन रहे हो, वो तो कोई और बोल रहा है, कोई और लिख रहा है, आप क्या करते हो? दैट इज राइटिंग एंड स्पीकिंग। मतलब जिस चीज पे आप राइटिंग कर सकते हैं, आज मैं आपको 11 बजे जो है वो एक क्वेश्चन पेपर दूंगा, 1 घंटे में आपने लिखना है उस पर। आपने तैयारी की होगी उन टॉपिक्स पे पूरा दिन, ठीक है। फिर उस घंटे में क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। आपने टॉपिक पे जो है एम ही नहीं लिखना, ताकि आपकी क्रिएटिव राइटिंग आ जाए, ठीक है। वैसे तो आप रट्टा लगा के चीज़ को रिप्रोड्यूस, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जवाब देना क्वेश्चन के हिसाब से, दैट इज क्रिएटिविटी। तो उस टॉपिक पे अगर आप लिख सके तो बस बात खत्म। If you have some questions, so please ask. I read an article in 4 to 5 hours but not cleared 100%. How should I study? Write on that topic. Write on that topic. If you can write on that topic, so it means that you have covered it. If you cannot write on that topic, so it means that you did not cover it. जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल आप पढ़ो, खुद रफ बनाओ। अगर आप मुझे नहीं दिखाना चाहते, टीचर को नहीं दिखाना चाहते, मत दिखाओ। लोगों को अपनी इज्जत वगैरह बड़ी प्यारी होती है, फेल होना पसंद करते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन जी टीचर के सामने मैं बेइज्जत ना हो जाओ, मेरी इज्जत बड़ा जनाजा ना निकले। बड़े जो है वो इज्जतदार बनने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी टीचर को नहीं दिखाना चाहते या इवैल्यूएशन नहीं कराते, तो खुद उस पर रफ कुछ लिखो, कोई बुलेट पॉइंट्स लिखो, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जब आप उस पे अपने मेमोरी से लिख सकते हो, तो वो टॉपिक आपका कवर हो गया। बेशक 4 घंटे ले ले, 10 घंटे ले ले, शुरू में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका टाइम कम होता जाएगा। How to transplant something from short-term memory into long-term memory? CSA में मैंने देखे है, सिविल सर्विसेज एकेडमी में जब हम गए, मुझे तो वैसे नॉलेज के साथ शौक़ है शुरू से, लेकिन मेरे जितने भी बैचमेट्स थे, जितने भी दोस्त थे, तकरीबन सब ने किताबें जला दी, बर्निंग। प्रैक्टिकली उन्होंने आग लगाई किताबों को। बस जी हमारी ये बकवास ख़त्म हो गया, अब हम इंजॉय करेंगे। तो फिर कोई करप्शन शुरू करता है, कोई और गड़बड़ करता है। तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, ये भी बस ठीक है, साइंस में है, साइकोलॉजी में भी है, लेकिन वो नीड बेसिस पे है, नीड बेसिस।
नीड टू नो बेसिस, नीड टू नो बेसिस। आपका CSS का एग्जाम है, PMS का एग्जाम है, उस वक्त उस चीज़ को याद रखो, मेमोरी में रखो, एग्जाम में लिखो, मार्क्स ले लो, ऑफिसर बन जाओ, आगे फिर आपकी मर्जी है। मेरे जैसा पागल 20 ग्रेड का ऑफिसर बैठ के आप लोगों के साथ मगज खपाए या फिर और आयाशी करे। तो कोई इस तरह वो शॉर्टकट नहीं है कि जी मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी और ये कहानियाँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये है कि पूरी ज़िंदगी आपको एक चीज़ चाहिए। अब फिलासफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, लिंग्विस्टिक्स है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, ये चीज़ें जो है ये मेरे दिल के करीब है, ठीक है। मैं जब मरूंगा तो पता नहीं कैसे होऊंगा, जहाँ भी होऊंगा, लेकिन वो कहा लिखा होगा, नो वरीज, नो रिग्रेट्स, एवरीथिंग इज ऑल राइट, डाइड विद हैप्पीनेस, लिविंग लेगेसी। तो मैं तो इन चीज़ों को कब्र तक ले जाऊंगा। कुछ लोग जो है वो उसको उस हद तक जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो नॉलेज को उस वक्त तक संभाल के रखो जब तक उसका आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो भूल जाओ उसको। अनकॉन्शियस जो आपका है, लाशऊर, उसमें परमानेंट चीज़ें पड़ी रहती है। Sometimes during reading a person cannot understand the meaning and it takes more time to get the point of other. How to combat this issue? Combat का वर्ड नेगेटिव है, how to tackle, how to handle। ये जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके अंदर का जो गन होता है उसको जाहिर करता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट हो आपको सिर्फ लिखते हो जी बोलो या लिखो, तो आपके अल्फाज से उनको पता चल जाए कि इस बंदे के अंदर क्या, कौन सा लावा पक रहा है। तो अगर आपका रिटर्न पास हो जाता है तो साइकोलॉजी में फिर इस तरह के अल्फाज मत लिखा करे, वरना एकदम से आपको पकड़ेगा कि यार ये कोई नेगेटिव किस्म का बंदा है। हाउ टू टैकल, हाउ टू हैंडल, हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू सॉल्व, कितने प्यारे प्यारे अल्फाज है। कम्बैट, ड्यूरिंग रीडिंग अ पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग। नहीं, मीनिंग आपको नहीं आता तो फिर क्या करना, आपने क्या है, पकोड़े समोसे उधर करने आपने। मतलब रीडिंग या स्टडी आप इसलिए करते हैं कि आप उसको मीनिंग आ जाए, स्पेलिंग आ जाए, प्रोनाउंसिएशन आ जाए, ग्रामर आ जाए, उस पर आप राइटिंग कर सके, रीडिंग स्पीकिंग कर सके। मीनिंग नहीं आता तो मीनिंग आ जाना चाहिए, डिक्शनरी से, गूगल से, जहाँ से भी हो। मीनिंग के बगैर तो ये कि आप चाइनीज़ पढ़ रहे हैं या कोई जापानीज़ पढ़ रहे हैं। बेसिक चीज़ तो मीनिंग है। नहीं आता उधर रुक के रहो, आगे मत जाओ, मत जाओ आगे। ग्रीडी मत बनो कि मैं 50 किताबें पढ़ूं, मैं 50 चैप्टर्स पढ़ूं। नो, क्वालिटी, थोड़ा सा, लिटिल बट ऑफ क्वालिटी। आई एम जस्ट रीडिंग योर क्वेश्चंस। Please ask questions. How to transplant something from shard? हाँ, ये तो हो गया। So basically, space time is life. Space time. आपका स्पेस क्या है, आपका टाइम क्या है? स्पेस टाइम, आप कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं, कौन सी जगह पे बैठे हैं, आपके स्टडी रूम कैसा है, ठीक है। स्पेस टाइम ये है कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हैं। हर एक घंटा जो है आपका यूनिट होना चाहिए। CSS PMS के कैंडिडेट्स के लिए यूनिट क्या है? मिनट। मिनट। साइकोलॉजिकल बीमारियों से बचो। मैं तो हैरान हो गया कि पाकिस्तान का हर तीसरा बंदा जो है वो नफ्सियाती मरीज़ है। तो अगर आपको नफ्सियाती मसला है तो फिर ये तमाम बातें बेकार है, ये हवा में गए। आप अपना नफ्सियाती इलाज करें। अगर आपकी मेमोरी को और आपकी नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई बड़ा शॉक आपको पहुंचा है, ट्रॉमा आपको पहुंचा है, कोई आपके ऊपर जो है कोई पत्थर गिरा है, कोई एक्सीडेंट आपने किया है, किसी बंदे ने आपको इतनी फजूल किस्म की बातें की है,
ठीक है, कि आपकी इज़्ज़त नफ्स, आपका सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो गया है, तो फिर तो इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है तो अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें। मिनट इज़ द यूनिट, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक रूम देता हूँ और उसको कहते हैं घंटा, आवर इज़ द यूनिट। आपका मिनट ज़ाया हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, खैर है 40 मिनट तक भी ठीक है, घंटा आपका ज़ाया ना हो। अगर आपका घंटा ज़ाया होता है, इफ़ यूर आवर इज़ लॉस्ट, बस फिर आप नाकाम इंसान है। मतलब आपकी ज़िंदगी में इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि आपका पूरा घंटा जो है वो चला जाए। जब आपका आवर जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिजिकल स्टडी जो है, आखिरी पॉइंट मेरा क्या है, आखिरी पॉइंट, ये वेरी इफेक्टिव पॉइंट है। व्हेन यू कैन नॉट डू मेंटल स्टडी, डू ओनली फिजिकल स्टडी। अगर आपका माइंड आपका साथ नहीं देता तो सिर्फ जो है आप फिजिकल स्टडी करें। फिजिकल स्टडी, फिजिकल स्टडी का क्या मतलब है? फिजिकल स्टडी का मतलब है कि इस तरह की कुर्सी पे बैठ जाए, किताब या स्क्रीन उठाए और फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करें। मतलब नॉन स्टडी जो है वो गलत है। मतलब आप कुकिंग कर रहे हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे आप उसको खा रहे हैं, 10-10 घंटे आप सो रहे हैं, 50-50 घंटे जो है आप शादियों में जाते हैं या आप कपड़े ख़रीदते हैं, उसमें आपके 5-5, 10-10 घंटे लगते हैं, तो वो नॉन स्टडी है, नॉन स्टडी एक्टिविटीज़। अगर आपका माइंड एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिजिकली तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो ना, कुर्सी पे तो अपने आप को बिठा सकते हो ना, किसी हैंड्स फ्री से किसी लेक्चर को तो सुन सकते हो ना। फिजिकली क्या करो, मेंटली मत क्या करो। आहिस्ता आहिस्ता आपका हैबिट बनता जाएगा, फिर आपका माइंड जो है वो सिग्नल्स आपको आएंगे और आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब आपका माइंड काम नहीं करता, बॉडी तो आपके कंट्रोल में है। मतलब इतना तो आप बेबस नहीं है कि अपने आप को कुर्सी पे नहीं बिठा सकते। कुर्सी पे अपने आप को बिठाओ, किताब ले लो या स्क्रीन स्टार्ट करो, देखा करो उसको, ऐसे देखा करो, बस कुछ नहीं होता। समझ आती है नहीं आती है, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। फिजिकली अपने आप को डिसिप्लिन में ले आओ, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज खत्म करो, फिजिकली अपनी बॉडी को नॉलेज के साथ अटैच करो। जब भी आप डिस्टर्ब है या आपकी तबीयत खराब है, मूड आपका एम ही है, फिजिकल स्टडी को मत छोड़ा करें, क्योंकि बॉडी आपके कंट्रोल में है। माइंड तो बड़ी आरामी चीज़ है, इधर उधर भागता रहता है, लेकिन बॉडी तो गरीब मस्कीन बॉडी है, इसको बिठाओ तो बैठती है, उठाओ तो उठती है, सुलाओ तो सोती है। तो बॉडी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपका बॉडी का कंट्रोल गया, ठीक है ना, आप वॉशरूम तक नहीं पहुंच सकते, या जो है आपका बॉडी का कंट्रोल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो, फिर तो आप लॉस्ट केस है, फिर तो आपका कोई इलाज नहीं है। हाँ, फिजिकल स्टडी का मतलब यह है कि भाई तुम फिजिकली स्टडी करो, बेशक आपको समझ आती है कि नहीं आती, स्क्रीन या बुक जो है वो आपके सामने हो। कुछ लोगों का बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है 80-90 साल के बाद, उनकी बॉडी भी उनके कंट्रोल में। माइंड का कंट्रोल तो बड़ा मुश्किल काम है, वो तो स्टोइसिज्म और फिलासफी और बुद्धिज़्म और ये जो है मेडिटेशन और साइकोलॉजी और पूरी दुनिया माइंड पे लगी है, फिलासफी और क्या क्या बातें। वो तो माइंड है ख़तरनाक चीज़। बॉडी तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक्सरसाइज करो, खाना खाओ, फिजिकल काम क्या करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, ये तो सिंपल सी चीज़ें होती है। कुछ लोगों का अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल नहीं होता। अब मेरा ये हाथ है, क्या मेरा इस पर कंट्रोल है कि नहीं है, ठीक है ना, ये जो मेरा हाथ है क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है।
वो तो फिर आप गए, फिर तो ना आप ड्राइविंग कर सकते हैं, ना आप कुछ और काम कर सकते हैं, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रही। कुछ लोग गिर जाते हैं, हर वक्त गिरते रहते हैं, सर उनका टकराता है, तो वो तो फालज उनको हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। फिजिकल प्रॉब्लम बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि माइंड की प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में इस तरह है कि माइंड तो कुछ है ही नहीं, माइंड तो हवा है। आपको सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कहते हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। अपने माइंड को, क्योंकि माइंड तो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, आपका हाथ नहीं है या आपका हाथ काम नहीं करता, दैट इज़ हाईली सीरियस इशू, वो तो बहुत सीरियस है। तो फिजिकल स्टडी का मतलब ये है कि कम अज कम जो है फिजिकली आप स्टडी किया करें, बुक को मत छोड़े, राइटिंग को मत छोड़े, रीडिंग को मत छोड़े, स्पीकिंग लिसनिंग को मत छोड़े, करते रहे फिजिकली। बेशक आपका माइंड जो भी आपको कहता है, और माइंड जो है वो एक खूबसूरत लड़की या लड़के की तरह चीज़ है, उसको छोड़ दो तो खुद ही आ जाता है, इसके साथ लड़ते रहते हो तो फिर वो भाग जाता है। तो ये बड़ी फजूल किस्म की चीज़ है, इलूसिव है, इलूसिव, स्लिपरी है, स्लिपरी चीज़ है। जितना माइंड पे फोकस करते हो इतना ही भाग जाता है। कभी कि उसको आज़ाद छोड़, बस जी मुझे नहीं ज़रूरत आपकी, जाओ जो करना है करो। नींद आपको नहीं आती, करे ना आए, क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं, नाम मत आओ, वो नींद एकदम आ जाती है। द एलिमेंट ऑफ माइंड बॉडी ग्रेजुअली डेवलप्स, यस बिल्कुल। जब आप फिजिकल एक काम करते हो ना, फिजिकल, अब आप जाते हैं कढ़ाइयाँ खाते हैं, कबाब खाते हैं, 50-50 घंटे इधर उधर गुजारते हो, फिर तो कोई वो सल्यूशन है ही नहीं ना। इल्यूसिव जो है वो ELUSIVE, इल्यूसिव। ये वाला जो इल्यूसिव है, स्लिपरी कुछ चीज़ें ना मछली की तरह स्लिपरी होती है। मछली को तुम पकड़ते हो, वो मछली इधर उधर गायब हो जाती है। मछली को छोड़ते हो तो हो सकता है नेट में आ जाए, स्लिप होने वाली चीज़ें। तो माइंड जो है ये स्लिपरी चीज़ों में है, ये आसान चीज़ नहीं है। बॉडी जो है वो आसान है, बॉडी जो है वो आपके कंट्रोल में, क्योंकि बॉडी गरीब डेड किस्म की चीज़ है, बस जो भी करना है करो उसके साथ। सो सी यू। मैं अब मज़ीद क्लासेस कम लूँगा, बिकॉज ऑन 3rd of June इज़ योर मंथली एग्ज़ाम, और डेली आपका जो है 11 से 12 बजे जो है राइटिंग प्रैक्टिस होगी। 12 बजे के बाद कमेंट्स ऑप्शन ऑफ हो जाएगा, तो आपका डेली एग्ज़ाम होगा। और डेली एग्ज़ाम में जो है आपके पास चॉइस बहुत वाइड होगा, ठीक है, लेकिन उस वाइड चॉइस को आप प्रोडक्टिवली यूज़ करें, लेज़ी मत रहे, फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करें, फिजिकल राइटिंग करते जाए। फिजिकल बेशक गलत हो,